اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان، میں اپنے تمام احباب، اعزاء دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا تھا، تاخیر ضرور ہوئی ہے مگر ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ باعث تخلیق کائنات ہیں، ان کے لیے میں کوئی ویڈیو یا کوئی کلپ نہ بناؤں، چاہے 10 منٹ کی بناؤں، 5 منٹ کی بناؤں، 15 منٹ کی، مگر میری خواہش تھی کہ میں بناؤں ضرور، جس کے لیے یہ پورا اللہ تعالیٰ نے فرش و عرش بچھایا اور میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانوایا جاؤں، تو میں نے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبعوث کیا۔ اور جب آدم آب و گل میں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق ہو چکا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ رحمان کی پہلی آیت جو ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا اور بیان کی قوت دی۔ یعنی خلقت سے پہلے علم قرآن آ رہا ہے دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر جو ہے خلقت انسان کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو کسی کو خلق کرنے کے ساتھ ساتھ علم قرآن بھی دے دیا گیا۔ یہ ذات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میں کیا بول سکتا ہوں، چھوٹا منہ بات بڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو قرآن مجید پورا قصیدہ ہے، میں کیا بول سکتا ہوں آپ کی شان میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں آپ کا نام جو تحریر کیا ہے وہ احمد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد، اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز کیا، جو آج تک بولا جاتا ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں ایک سورہ بھی موجود ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ نام ہے کہ اگر احمد کا الف ہٹائیں، احمد کا، تو ہے میم دال حمد بچے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے اگر میم کو ہٹا دیں تو ہے میم دال حمد بچے گا۔ یہ دونوں نام ایسے ہیں، یعنی احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، یہ دونوں نام آج تک۔ اور اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ کیا اعلیٰ بات ہے، کیا اعلیٰ بات ہے۔ میں آپ کے لیے کیا کہوں، آپ ختم الرسول ہیں، آپ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو ہیں شافع محشر ہیں، آپ مقام محمود پہ جلوہ افروز ہوں گے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ نور مجسم ہیں، آپ عدد اول ہیں، نور اول ہیں، مخلوق اول ہیں، بشر اول ہیں۔ آپ کی تعریف کیا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے ذاتی اسم کے بعد 99 القابات جو قرآن مجید میں ہے، الرحمن الرحیم کے بعد سارے ہیں، ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، وہی اپنے حبیب کے لیے پسند کیا کہ 99 القابات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں ہے۔ ایک طرف کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے 99 القابات ہیں، تو دوسری طرف اپنے حبیب پاک کے لیے بھی 99 جو القابات ہیں اس کو شمار کیا ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر نبی کو اس کی امت کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ نبی بتائے گا کہ میری امت نے میرے ساتھ کیا کیا، احکامات کو مانا یا نہیں مانا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سارے انبیاء کے اوپر، یعنی 1,23,999 انبیاء کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ نبی اپنی امت کا احتساب کرے گا، اور انبیاء کا احتساب خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ کیا مقام ہے آپ کا۔ قرآن مجید نے کہا ہم نے آپ کو عقل کل بنا کے بھیجا ہے،
100% यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन, 100% अकल का इस्तेमाल, 100% हमने अकल कुल आपको बना के भेजा है। क्या क्या आपको आपको मुजम्मिल कहा, मुदस्सिर कहा, ताहा कहा, यासीन कहा, अब्द कहा। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने अब्द को, रसूल को नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, अब्द को माबूद ने बुलाया अर्श के ऊपर, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा अब्द को ले गया। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने अब्द को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा जाता है कि ए रसूल, कायनात में, दुनिया में नहीं, कायनात में जितने तैयबात हैं, पाक चीजें हैं, उम्मत के लिए उसको पाक करार दें, और जितने खबाइस हैं, हराम चीजें हैं, उम्मत के लिए उसको हराम करार दें। कितना क्वालिफाइड रसूल है, जिसको तमाम कायनात की पाक चीजों का इल्म है, जिसको कायनात की तमाम हराम चीजों का इल्म है, फिर हम उसके बारे में लिखते हैं कि वो उम्मी था, ना लिखना जानता था, ना पढ़ना जानता था। अल्लाह वो हुक्म दे ही नहीं सकता है अपने नबी पाक को जो उसमें क्वालिटी मौजूद ना हो। सबसे पहली वही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा, पढ़। जिसने पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अगर नहीं आता था तो हुक्म क्यों आ रहा है? पढ़, पढ़ उसी वक्त आएगा। ये वही चीज है जैसे कि कुरान मजीद में जगह जगह इस्तेमाल हुआ अलम तरा, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने फील वालों के लोगों के साथ क्या किया? तो जो मौजूद होता है, जो आई विटनेस होता है, जिसके सामने वाकया हो रहा होता है, उससे पूछा जाता है क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा? इसका मतलब है कि आपके मबूस होने से पहले आपने अब्रहा वाला वाकया देखा था। तभी अल्लाह ताला कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फील में, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया, क्या आपने नहीं देखा था? आपने देखा था क्योंकि आप गवाह थे। और हम क़यामत के दिन 1,23,999 अंबिया पे आपको गवाह बनाएंगे। अगर आपने देखा ही नहीं था तो गवाही किस किस बात की? कैसे कोई गवाही देगा जब तक के चश्मदीद गवाह ना हो, वाकया को होता हुआ ना देख रहा हो। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप इनके दरमियान हैं हम अजाब नहीं देंगे। एक होता है बज़ाहिर सामने मौजूद होना, जैसे कि हज्जतुल विदा के मौके के ऊपर कमोबेश 1,25,000 या 1,50,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन साथ में थे। कमोबेश 1,25,000 या 1,50,000 सहाबा मौजूद थे रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन। तो अल्लाह ताला जब आप आखिरी में आए और कह रहा है कि हम क़यामत के दिन हर नबी के ऊपर आपको गवाह बनाएंगे कि इस नबी ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की या नहीं की। और उस नबी के लिए कहा जा रहा है जब तक आप इनके दरमियान हैं इन पे अजाब नहीं आएगा। कौम हूद पर आया, समूद पे आया, तूफान नूह आया, जलजला आया, झक्कड़ चले, क्या जुएं बरसी, आग बरसी, मेंढक बरसाए गए। कुरान मजीद में अजाब की भरमार है, बेशुमार अजाब आए। मगर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप इनके दरमियान हैं इन पे अजाब नहीं आएगा। आप जब ये कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह मस्जिद नबवी और रौज़ा रसूल में अब क्या बाकी बचा है, तो अजाब तो आ जाना चाहिए। जब तक एक होता है बज़ाहिर मौजूद होना, जो आप अपने अहले बैत के साथ, अपने सहाबियों के साथ मौजूद थे। एक वो है जो पर्दा फरमा गया, आप मौजूद हैं मगर आपकी नजर वो बसारत नहीं रखती है, वो बीनाई नहीं रखती है कि आपको देख सके, मगर आप मौजूद हैं, आप मौजूद हैं। अल्लाह ताला का एक जो लक़ब है
महमूद। महमूद का मतलब है, ये पढ़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, महमूद का मतलब है जिसकी तारीफ की जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। और हम हश्र में आपको मकाम महमूद पर जलवा अफरोज करेंगे, मकाम महमूद पर आपको बिठाएंगे। और अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। हर अजान के बाद ये दुआ या जुमले अदा किए जाते हैं। मकाम महमूद पर आप जलवा अफरोज होंगे। महमूद अल्लाह ताला की जात है जिसकी तारीफ की जाए, और मोहम्मद वो हस्ती जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। तो ये कैसी बात है कि माबूद की तारीफ की जाए और अब की सबसे ज्यादा तारीफ की जाए? ये भी समझने वाला नुक्ता है। सूरह लुकमान 31वां सूरह कुरान मजीद का, उसमें आयत मौजूद है कि दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं और सातों समंदर रोशनाई बन जाएं। मैं स्याही नहीं बोलता हूँ, आपकी जात मुबारक रोशनी फैलाती है तो मैं रोशनाई इस्तेमाल करता हूँ, स्याही नहीं बोलता हूँ। कि दुनिया के तमाम दरख्त कलम बन जाए और सात समंदर रोशनाई बन जाए, और सात समंदर और ले आओ आयत में है, मेरी हम तुम बयान नहीं कर सकते। इसी चीज को सूरह रहमान में 31 मरतबा अल्लाह ताला ने बयान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। 31 मरतबा आया है, 31, आप काउंट करके देख लीजिएगा, 31 मरतबा आया है। जाहिर है कोई बात में वजन तो है ना, कोई वजन तो है। तो अल्लाह की तारीफ का हक कौन अदा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। तो कहा महमूद का मतलब है जिसकी तारीफ की जाए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब हुआ जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। उसकी वजह यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाह और मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, जिन्नो इंस, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जिस अल्लाह ताला 3 चीजों में बंदे के साथ शरीक है। तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूँ। तुम भी दुरूद पढ़ो, मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ। तुम भी लानत भेजो, मैं भी लानत भेजता हूँ। ये 3 ऐसी इबादतें हैं जो अल्लाह ताला खुद कर रहा है। तो जिसकी तारीफ में अल्लाह ताला की जात खुद शामिल हो जाए, उसका मतलब बुलंद हो जाएगा ना, आला और अरफा। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब हुआ जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, यानी जिसमें अल्लाह शामिल हो गया है। उस हस्ती की क्या हैसियत होगी, क्या मुकाम होगा। ए ईमान वालो, रसूल जो दे दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। अगर गदीर क़ौम में कुछ दिया था तो ले लो, अगर नहीं लिया तो वादा खिलाफी की। रसूल से आगे जाने की कोशिश नहीं करना। कुछ गए होंगे ना, आयत आई, ए मोमिनो, ए ईमान वालों, रसूल से आगे जाने की कोशिश नहीं करना। क्या होगा उसके बाद अभी बताता हूँ। जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, ऐसे रसूल को ना पुकारना। अगर तुम्हारे जैसा होता तो हम इजाजत देते थे, वो तुम्हारे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उस तरह नहीं पुकारो जैसे तुम अपने दोस्तों को पुकारते हो, हरगिज ना पुकारो। और जो रसूल दे दे वो ले लो, जिससे मना कर रहे उसको बाज आ जाओ। ऐ ईमान वालों, जब तुम आपस में दस्तो गिरबान होकर लड़ाई झगड़े की सूरत अख्तियार कर लो, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई फैसला कर दे और उसको दिल से ना तस्लीम कर लो, उनको हकम ना मान लो, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। तो अगर आगे चले गए, अगर उस तरह पुकारा जैसे दोस्तों को पुकारते हैं, अगर जो रसूल ने दिया अगर नहीं लिया, कुर्बा की मवद्दत हो, अगर वो नहीं दी तुमने, तो अगर गदीर क़ौम में किसी को मौला बनाया हो, मन कुंतु मौला फहाज़ा लियुल मौला, अगर तुमने वो वाली नेमत नहीं ली, तो जिस तरह तुम आगे रसूल से चले गए, जिस तरह तुम अपने दोस्तों को पुकारते हो, जिस तरह तुम रसूल पे अपनी आवाज को बुलंद करते हो, रसूल जो दे दे वो नहीं लेते हो, तो तुम्हारे आमाल हफ्त कर लिए जाएंगे। हलवे वाली हे बे तोए, हफ्त में और जब्त में बड़ा फर्क है। मैंने गाड़ी को गलत जगह पे पार्किंग कर दी, आके देखा मेरी गाड़ी नहीं है, किसी ने कहा थाने वाले ने उठाई, मैं वहां चला गया, उन्होंने कहा आपने गलत जगह पार्किंग की थी,
اس کا اتنا ہرجانہ ہے، اتنی رقم ادا کیجیے، اپنے کاغذات دکھائیے، NIC دکھائیے اور یہ گاڑی اٹھا لے جائیے۔ میں نے وہ جرمانہ ادا کیا، گاڑی مجھے مل گئی، یعنی میری تھی تو مجھے مل گئی۔ یہ ہوتا ہے ضبط کر لی گئی، آپ کی گاڑی ضبط ہو گئی۔ حبس کا مطلب ہوتا ہے جس پہ آپ کا کوئی حق کبھی تھا ہی نہیں، یعنی پڑھی ہوئی نمازیں، رکھے ہوئے روزے، کیے ہوئے حج، دی ہوئی زکوٰۃ، کیا ہوا جہاد، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، جو اعمال آپ نے کیے ہوں گے وہ حبس ہو جائیں گے یا آپ سے تھے ہی نہیں کبھی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اگر رسول سے اوپر آواز بلند کی، اگر رسول نے جو دیا وہ تم نے نہیں لیا، اگر رسول سے آگے نکل گئے اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو رسول کو پکارا، تو تمہارے سارے اعمال حبس ہو جائیں گے، لا تشعرون، اور تم کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے جیسا کبھی بھی نہیں کہنا، اپنے جیسا کبھی، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ کو ہزاروں لوگ مل جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنیٰ بہت روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، مگر مجھے کوئی ایسا شخص دکھائیے، میری نظر میں ابھی تک نہیں آیا ہے، کمنٹ سیکشن میں مجھے ان کا نام دیجیے گا، ان کا لنک بھیجیے گا کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 القابات کو روانی کے ساتھ پڑھا ہو۔ مجھے نہیں ملا، اس لیے کہ اس قدر مشکل ترین ہے اس کا تلفظ، 99 جو القابات ہیں رسول خدا کے، اس قدر مشکل ہیں کہ وہ اگر روانی سے آپ پڑھنا چاہیں گے تو نہیں پڑھ سکیں گے آپ۔ اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہنا چاہ رہا ہے میرے نبی کو سستا نہیں لو، سبک مت لو، معمولی مت لو، بالکل اپنے جیسا مت جانو۔ میرا نبی بہت اعلیٰ عرفہ ہے، بہت بلندیوں پر ہے میرا نبی بھیجا ہوا، میرا حبیب بہت بلندیوں والا ہے، اس کو سرسری طور پہ نہ لو۔ جس کا نام، جس کے القابات کو تم آسانی سے ادا نہیں کر سکتے ہو، تو اس ذات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں نے فرشتے بنا دیے تھے، جو تسبیح پڑھ رہے تھے وہ تسبیح پڑھ رہے تھے، جو رکوع کر رہے تھے وہ رکوع کر رہے تھے، جو سجود میں تھے وہ سجود میں تھے، جو جس کیفیت میں اللہ نے حکم دیا تھا وہ اس کی بجا آوری کر رہے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانوایا جاؤں، تو اے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی ذات کو خلق کیا۔ اللہ اپنے تعارف کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ تلاش کر رہا ہے، اور دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ براہ راست اللہ تک پہنچو، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ قرآن میں درود کی بھی آیت موجود ہے، جو لوگ درود نہیں مانتے ہیں۔ یہ جو میں نے پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد، آیت موجود ہے۔ پھر بھی منکر ہیں درود کے، اور درود کے بغیر کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی ہے اس کے بغیر۔ تو آپ کی ذات مبارکہ، آپ نے اپنے اہل بیت کے ساتھ، بنی نجران کے ساتھ مباہلہ کیا، جس میں عیسائی وقت تھا، انہوں نے کہا کہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام گود میں، امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ آپ شانہ پکڑے ہوئے تھے، آپ کی پشت پہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور آپ کی بالکل پیچھے شہزادی کے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام میں شامل تھے، وہ جا رہے تھے اس طرف سے۔ بنی نجران نے کہا ہم وہ متبرک چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکم دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، یہ قرآن ناطق ہیں جن کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ وہ چہرے ہیں متبرک، نور ساطع ہو رہا تھا، نور پنجتن پاک کا، کہ اگر یہ اشارہ کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اور قرآن صامت کے لیے کہا اگر ہم اس کو جبل پہ نازل کرتے پہاڑ پہ تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ رسول خدا خاکی تھے یا نوری تھے؟ نور کو لے سکتا ہے، خاک نور کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر خاکی ہوتے تو قرآن مجید جو کہ نور ہے کیسے لے لیتے؟ ہم نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے، اور رسول پہ ایمان لاؤ، کتاب پہ ایمان لاؤ، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو رسول کے ساتھ ساتھ ہم نے نازل کیا ہے۔ آیت قرآن میں رسول کو پہ ایمان لاؤ، کتاب پہ ایمان لاؤ، اور اس نور کی پیروی کرو، اس نور کو مانو جو ہم نے رسول کے ساتھ ساتھ نازل کیا ہے۔ سورہ نور میں ہے قیامت کے دن
कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दाएं बाएं आगे पीछे नूर ही नूर होगा, जहन्नमी कहेंगे अपने नूर में से कुछ हमें दे दो। वो कहेंगे कि दुनिया में तुम हमें खाकी समझते थे, नूर का तुम समझते ही नहीं थे, आज हमसे नूर मांग रहे हो, जहन्नम में जाओ, तुम्हारा ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम है। मैं ज़ाते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या पढ़ूं, क्या पढ़ूं? और तो कुछ नहीं मांगा मेरे मौला मैंने, एक झलक रोज़ा अक़दस की क़ज़ा से पहले। क्या कह सकते हैं? इतनी आला और शख्सियत, इतनी बुलंद तरीन शख्सियत, इतनी बेहतरीन शख्सियत। जब अ, आपकी पैदाइश हुई तो हज़रत अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ़ ले गए, जो आपके वालिद थे। जब आप 6 साल के हुए तो बीवी आमना के साथ सलामुल्लाह अलैहा के साथ रास्ते में थे, वो वफ़ात पा गईं। आप तरबियत में आ गए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से चले गए, पर्दा फरमा गए, चले गए, तो आपकी तरबियत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने की। शेर अबी तालिब में सख्त तरीन ये 3 साल गुज़रे थे, जिसमें हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम रसूल खुदा को हटा के अपने बेटों को सुलाते थे। अगर हमला हो तो मेरे बेटों पर हो, रसूल खुदा को कोई गज़न, कोई तकलीफ ना पहुंचे। अपने भतीजे को बचाते थे, अपने बेटे को सुलाते थे। और क्या मैं बताऊं, जब आमुल हिज़्न हुआ और वो गम का साल जो आपने मनाया, जिसमें हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हज़रत मलकतुल अरब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से तशरीफ ले गई, तो आपने साल भर, लोग कहते हैं स्वयं क्यों है, चेलुम क्यों है, पूरा गम का साल मनाया है, आमुल हुज़्न मनाया है आपने, गम का साल मनाया जाने के ऊपर। उसके बाद से क्या आपको हिजरत का हुक्म दिया। आपने मौला कायनात को अपने बिस्तर पर सुला के हिजरत की और कहा, अली सुबह को अमानतदारों को देने के बाद मुझसे मिल लेना आके। मदीने में आपने अंसार को महाजिर का भाई बनाया, एक दूसरे का भाई बनाया। अब मौला कायनात अली मुर्तज़ा बच गए, रसूल खुदा बच गए। आपने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए किसी का इंतखाब आपने किया नहीं किया। अली का हाथ अपने हाथों में लिया और ये कहा, ये साहब सित्ता की किताबों में मौजूद है, अली तुम मेरे भाई हो, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी तुम मेरे भाई हो, ये कह के किया। कुरान मजीद में आयत मौजूद है, सूरह रात 13वां सूरा आयत नंबर 43, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन अंदहु इल्मुल किताब। ए रसूल, आप परेशान ना हो, आज़रदा ना हो, गमनाक ना हो, कह दीजिए आपकी रिसालत की गवाही के लिए 2 गवाह काफ़ी हैं, एक अल्लाह काफ़ी है और एक वो शख्स काफ़ी है जिसको किताब इलाही का पूरा इल्म है। किसी ने जनाब अमीर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा, आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? आपने कहा, मेरी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि खुदा के बाद रिसालत का दूसरा मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी फजीलत है। यही वजह थी जब सुलह हुदैबिया जो है उसमें डॉक्यूमेंटेशन हज़रत अली इब्न अबी तालिब कर रहे थे, कागज़ और कलम जो था वो हज़रत अली के हाथ में था, लिखते जा रहे थे, शरायत लिखते चले जा रहे थे। बज़ाहिर मोमिनीन ने कहा कि रसूल खुदा ने हमें आज किस हाल में कर दिया, शिकस्त से 2-4 हमें कर दिया। बज़ाहिर शिकस्त नज़र आ रही थी, बातिन में फतह थी, उसके फौरन बाद मक्का मुअज़्ज़मा फतह होता है। उसके अंदर जब बात आई मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उन्होंने कहा, अगर हम आपको रसूलुल्लाह मानते होते तो इस सूरह की गुंजाइश, इसकी ज़रूरत क्या थी? आप रसूलुल्लाह काट दीजिए। बस पहली चीज़ को हज़रत अली मुर्तज़ा ने मना किया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी में, और कागज़ और कलम लेकर रसूल खुदा को दे दिया और कहा कि या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको नबी बनते देखा है, अगर खुदा के बाद मैंने काट दिया तो रिसालत की गवाही नामुकम्मल रह जाएगी। क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है। जिसके अलकाबात की तादाद, मौला कायनात की अलकाबात की तादाद 650 से 750 के दरमियान जो हम तक पहुंची है मरजाए आलम से, वो है पता नहीं कितनी होगी। जौशन कबीर अगर पढ़ लिया जाए तो उसमें बेशुमार अलकाबात है जनाब अमीर के। आपसे किसी ने पूछा हजरत अली से, आपने अपने से ज्यादा किसी को शुजा पाया? कहा हाँ पाया। कहा किसको? कहा वो अल्लाह के रसूल हैं, वो मेरे चचाजाद भाई हैं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो मुझसे भी कई गुना ज्यादा शुजा और बहादुर हैं। शमशीर नहीं चलाने का मतलब यह नहीं है कि शुजा आदमी नहीं हो सकता है। आप रहमतुल आलमीन थे, अगर आप रहमतुल आलमीन का लक़ब लिए हुए हैं और एक हाथ में तलवार है तो दोनों एक दूसरे की ज़िद है। रहमतुल आलमीन के हाथ में तलवार नहीं हो सकती है। तो ए रसूल, इन्होंने आपके हाथ पे बैअत नहीं की है, इन्होंने अल्लाह के हाथ पे बैअत की है।
तब अली का जो फेल होगा वो रसूलुल्लाह का फेल होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह तलवार नहीं चला सकते, आप रहमतुल आलमीन है। तो किसी ने पूछा कि आप अफजल हैं या रसूल खुदा अफजल हैं, तो आपने नहजुल बलागा में गुस्ताखी करने पे आप बहुत ही जलाल में आ गए, तूने क्या गुस्ताखाना सवाल किया है। मेरी मिसाल रसूल के सामने ऐसी थी जैसे ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी के पीछे पीछे चलता है, जैसे जैसे उसका कदम आगे बढ़ता है बच्चे का कदम वैसे वैसे वहां पे पड़ता है। ये ज़ात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी क्या कहा जाए आपके बारे में। मैं कलमा गो को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। अहले ईमान, अहले इस्लाम माजरत खाऊं, अहले इस्लाम, अहले ईमान, अहले मवद्दत। अहले इस्लाम इसलिए कहूंगा कि कुरान में आयत है, इनसे कहिए कि अभी तो तुमने कलमा पढ़ा है, अभी तुम इस्लाम लाए हो, कलमा तो तुम्हारे कल्ब में दाखिल ही नहीं हुआ, ये अहले इस्लाम है। जब कलमा कल्ब में आ गया अहले ईमान है। अहले ईमान भी गुमराह हो सकते हैं। कुरान मजीद में जगह जगह मोमिनीन को डांट पड़ी है, ए मोमिनो तुमने अगर ये किया तो मैं ये कर दूंगा, तुमने ये किया तो मैं ये कर दूंगा, तुमने ये किया तो मैं ये कर दूंगा। और पूरे कुरान मजीद में मुत्तकियों को डांट नहीं पड़ी है। ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है, जन्नत हमने मुत्तकियों के लिए बनाई है। सूरह मरियम की आयत नंबर 63 है कि मैंने फैसला किया है, अल्लाह ताला कह रहा है कि कयामत के दिन अपने बंदों में से, जमा का सेगा बंदों में से उस एक शख्स को जन्नत का वारिस और मालिक बनाऊंगा जो मुत्तकी और परहेजगार होगा। तो अमीरुल मोमिनीन बनते गए, खत्म होते गए, मगर इमामुल मुत्तकीन सिवाय अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के और कोई भी नहीं। आपने फरमाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा, अली मैं जिस्म, तुम मेरा सर। शख्सियत की पहचान सर से होती है। मैं जिस्म, तुम मेरा सर। अली तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, तुम्हारा खून मेरा खून। क्या कहना है, क्या कह सकते हैं। अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। एक में खातमुन नबिय्यीन की नबुवत चली गई, एक में इमामत का सिलसिला शुरू हो गया। बहुत लंबी क्लिप हो जाएगी, ये हो सकता है मैं पार्ट 2 बनाऊं। अपने कमेंट्स दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये आपको ये वीडियो ये क्लिप कैसी लगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।